وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون क्या जिस शख्स से हमने कोई अच्छा वादा किया हो और वो उसे पाने वाला हो वो इस तरह का हो सकता है जिसे हमने दुनियावी जिंदगी का सामान दिया हो और वो क़यामत वाले दिन जवाबदही के लिए पेश किया जाने वाला हो। एक वो शख्स है जिसे हमने जन्नत का वादा किया, नेकी का वादा किया, दुनिया में भी वो उसको नेकी मिली और आखिरत में भी उसको मिलने की उम्मीद है। वो शख्स और ऐसा शख्स बराबर हो सकते हैं जिससे हमने दुनियावी जिंदगी का सामान दिया हो लेकिन आखिरत में अजाब के लिए वो हाजिर किया जाने वाला हो। यानी ये दोनों शख्स बराबर नहीं हो सकते। हकीकत ये है कि दुनिया की नेमतों में काफिर और मोमिन दोनों शामिल होते हैं, जबकि आखिरत की नेमतें सिर्फ काफिर के लिए हैं, सिर्फ मोमिन के लिए हैं और आखिरत का अजाब सिर्फ काफिर के लिए है। आखिरत के अजाब से अल्लाह के फरमाबरदार बंदों को बचा लिया जाएगा और क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्हें पुकारेगा और उनसे पूछेगा वो कहाँ है वो शरीक जिन्हें तुम मेरा शरीक समझा करते थे। वो लोग कहेंगे जिन पर अजाब की बात वाजिब हो जाएगी, ए रब हमारे, हमने उनको गुमराह किया था
اور انہیں ایسے ہی گمراہ کیا تھا جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے یہ تو ہماری عبادت ہی نہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے کہ آج تم اپنے خداؤں کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے اور وہ کیوں نہیں آتے؟ اب ہوگا یہ کہ یہ سوال مشرکوں سے کیا جائے گا اور وہ کچھ جواب نہ دے سکیں گے، لیکن جنوں اور انسانوں میں سے ان کے معبود خود بول اٹھیں گے کہ اصل میں تو یہ اپنے مفادات کے تحفظ اور اپنی خواہشات کی پیروی میں ہمارے پیچھے لگے تھے، انہوں نے اصل میں ہماری عبادت نہ کی تھی، انہوں نے تو اپنی خواہشات کی پیروی کی تھی، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ آج ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ قیامت والے دن سب مشرکین اور ان کے جھوٹے معبود ایک دوسرے سے دشمنی اور نفرت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان بھی قیامت والے دن کہہ دے گا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، تم نے میری عبادت نہیں کی تھی، تم تو اپنے نفس کی عبادت کرتے تھے۔ تو اسی طرح ان کے شریک بھی کہہ دیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم تو اپنے مفادات اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اور قیامت والے دن کہہ دیا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، وہ شریکوں کو پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دے سکیں گے اور وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ کاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے، دنیا میں ہدایت پانے والے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ قیامت والے دن تمام قوموں کو کھڑا کر لیا جائے گا اور قوموں سے سوال کیا جائے گا بتاؤ تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی پوچھیں گے بتاؤ تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو اس وقت جواب دینے کی بجائے ان کو کوئی بات بھی سجھائی نہ دے گی، ان پر خبریں ختم ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے۔ ہاں جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو شاید کہ یہ لوگ کامیاب ہوں۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے، اور ان کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں۔ کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ نبوت مکہ اور طائف کے بڑے سرداروں میں سے کسی سردار کو کیوں نہیں دی گئی اور محمد کو کیوں دے دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اختیارات سارے میرے پاس ہیں، ان کے لیے اختیار نہیں ہے، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی ان سے ذرا پوچھئے تو بھلا تم دیکھو تو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک بنا دے تو کوئی ایسا معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آئے؟ دیکھیں قرآن مجید کے دلائل کتنے سادے ہوتے ہیں۔ دن ہوتا ہے، اس کے بعد رات آتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا کریں کہ ہمیشہ رات ہی رہے، دن نہ آئے، بتائیے ہماری زندگی چل سکے گی؟ ہماری زندگی چل سکے گی؟ اور ہمارے پاس کوئی ایسا خدا ہے جو ہمارے پاس دن کی روشنی لے کر آئے، سورج کی حرارت لے کر آئے، ساری زندگی کا نظام تل پٹ ہو کر رہ جائے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا معبود ہے جو تمہارے پاس سورج کی روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نباتات، پھل، سبزیاں پیدا ہی نہ ہوں، اور ظاہر ہے جب سورج نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، آبی بخارات بھی نہیں بنیں گے، بارش بھی نہیں ہوگی، پانی کا قحط آ جائے، درجہ حرارت اتنا نیچے گر جائے کہ انسان کو زندگی مشکل ہو جائے۔ یہ صرف ایک چیز کا نتیجہ ہے کہ اگر دن نہ آئے اور صرف رات ہی رہے۔ حقیقت یہ ہے یہاں پہ زندگی ناممکن ہو کے رہ جائے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت تک ہمیشہ دن ہی دن رہنے لگ جائے تو کوئی ایسا خدا ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس رات لائے جس میں تم سکون سے رہ سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں اگر ہمیشہ دن رہیں اور رات نہ آئے تو چیزیں گرم ہو کر جل جائیں اور انسان کو آرام کرنے کے لیے رات کا سکون بھی میسر نہ آئے۔ اور اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا تاکہ تم
उसमें सुकून हासिल करो और दिन को अल्लाह का फजल तलाश कर सको और ताकि तुम शुक्र कर सको। असल बात है इंसान सोचता नहीं है, वरना जरा गौर तो कीजिए, दिन और रात अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं। अगर हमेशा रात रहे तब भी ये जिंदगी तिलपट होकर रह जाती है, और अगर हमेशा दिन रहे तो तब इंसान सूरज की तपश से जल के मर जाए, तब भी जिंदगी मुमकिन ना हो। शुक्र करने वाले इंसान के लिए हजार हाँ मौके हैं अल्लाह का शुक्र करने के लिए, लेकिन हम चूंकि इन सारी चीजों के आदी हैं, बचपन से हमने देखा दिन आया, उसके बाद रात आई, सूरज निकला, चांद निकला, और कभी हमें अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में कभी भी अल्लाह की रहमत हमसे दूर ना हुई, वरना इंसान को लग पता जाता कि अल्लाह ताला की रहमत कहाँ कहाँ हमारा साथ देती है, ताकि तुम शुक्र करो। तो लिहाजा आज इस बात पर ही हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें रात और दिन दिए। ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है, जिसकी वजह से हमारे लिए इस दुनिया में जिंदगी मुमकिन हुई है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उन्हें पुकारेगा तो उन्हें कहेगा, मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनको तुम मेरे साथ शरीक ख्याल किया करते थे। असल बात है ये दिन और रात, ये सूरज और चांद, ये जमीन और आसमान, इन सब का खालिक और मालिक अल्लाह है, और इनके पैदा करने में और इनका इंतजाम करने में अल्लाह के साथ कोई और शरीक शामिल नहीं है। और हम हर उम्मत से गवाह निकालेंगे और हम उनसे कहेंगे अपनी दलील लाओ, शिरक पर अपनी दलीलें लाओ, तो वो जान जाएंगे कि बात तो अल्लाह ही की सच्ची थी, और उनसे खो जाएगा जो वो दुनिया में झूठ बांधा करते थे। बेशक कारून मूसा की कौम से था, तो कारून ने उन पर सरकशी की, और हमने कारून को इतने खजाने दिए थे कि उसकी चाबियां ताकतवर आदमियों की एक जमात बामुश्किल उठा सकती थी। उसने अपनी उसकी कौम ने कहा, तुम ना इतराओ, अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। कारून हजरत मूसा का चचाजाद भाई था। इसको अल्लाह ताला ने इतना मालो दौलत दिया था कि इसके खजानों की जो चाबियां थी उन्हें ताकतवर आदमियों की एक जमात उन सिर्फ चाबियों को उठाती थी। चाहिए तो ये था कि ये हजरत मूसा पर ईमान ले आता, लेकिन आपको पता है कि अपने मफादात की खातिर ये फिरौन का साथी बन गया। बजाय इसके कि हजरत मूसा पर ईमान लाता, उल्टा फिरौन के साथ शामिल होकर हजरत मूसा के खिलाफ हो गया। इसकी कौम ने उसे कहा कि तुम ना इतराओ, तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, हजरत मूसा पर ईमान ले आओ। तो ये क्योंकि अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता, और जो मालो दौलत अल्लाह ताला ने तुझे दिया है उससे आखिरत का घर बनाने की फिक्र करो, दुनिया में भी अपना हिस्सा फरामोश ना करो, और लोगों से ऐसे ही नेकी करो जैसे अल्लाह ताला ने तुझसे नेकी की है, और जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश न करो। अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। मालो दौलत को नाजायज खर्च करना और नाजायज जमा करना मुआशरती नाहमवारियों और फसाद का सबब बनता है। लोगों ने इसे कहा कि तुम हजरत मूसा की दावत हक को कबूल करो और अपने माल को हलाल तरीके से कमाओ और हलाल तरीके से ही खर्च करो, और मुआशरे में फसाद का बाइस ना बनो। वो कहने लगा, ये जो माल मुझे मिला है ये तो मुझे अपने इल्म की बदौलत मिला है। क्या वो नहीं जानता कि उससे पहले ऐसे बहुत से लोगों को अल्लाह हिलाक कर चुका है जो उससे कुव्वत में और माल में कहीं ज्यादा थे। उस बेवकूफ की पहली गलती तो ये थी कि उसने समझ लिया कि मालो दौलत उसके इल्म हुनर की वजह से उसके पास जमा हुआ है। हालांकि हम हर वक्त देखते रहते हैं कि इल्म हुनर के बावजूद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी तमाम इल्म हुनर के बावजूद 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं आती। बाज लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद हमारी मेहनत की वजह से हमें माल मिला है। अगर माल मेहनत की वजह से मिलता तो हम हर वक्त देखते रहते हैं कि वो लोग जो हमारे घरों में काम कर रहे होते हैं, पूरा खानदान मिलकर काम कर रहा होता है। बाप चौकीदार के तौर पर, माँ हमारे घर में काम करने के लिए, उनके बच्चे हमारे बच्चों को खिला रहे होते हैं। इतनी सख्त मेहनत के बावजूद पेट भरकर रोटी नहीं मिलती। असल बात यह है
माल दौलत अल्लाह अता फरमाता है। अल्लाह जिसको चाहता है अल्लाह रिस्क दे देता है। और अगर किसी शख्स को ये ख्याल है कि मेरी डिग्री की वजह से या मेरी अक्लो हुनर की वजह से मुझे माल मिला है, तो सोचना चाहिए ये अक्लो हुनर और ये इल्म किसने दिया था, ये जिंदगी किसने अता फरमाई थी, वो दिमाग किसने दिया था, वो समझ किसने अता फरमाई थी, और उस मेहनत करने की ताकत किसने अता फरमाई थी। हकीकत ये है कि मालो दौलत या कोई और नेमत अल्लाह ही के फजल का नतीजा होती है। जो शख्स इस हकीकत को समझ लेता है और अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, अल्लाह ताला उसकी इन नेमतों को बढ़ाते रहते हैं। और लेकिन जो शख्स से नाशुक्री करता है तो याद रखिए अल्लाह ताला वो नेमत भी छीन लेते हैं और आखिरत का अजाब अलहदा देते हैं। वो कहने लगा ये तो मैं अपने इल्म की वजह से दिया गया हूँ। अल्लाह ताला ने कहा क्या वो नहीं जानता कि इससे कबल बहुत सी ऐसी बस्तियां थी जो उससे ताकत में भी ज्यादा थी और कुव्वत में भी ज्यादा थी, तो उनको हमने हिलाक कर दिया और मुजरिमों से उनके गुनाहों के मुतालिक ना पूछा जाएगा। तो कारून अपनी कौम पर अपने ठाट बाट के साथ निकला। जैसे आजकल आपने देखा है हमारी हुकूमत के वज़रा और उमरा बड़े प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं, वो भी अपनी पूरे प्रोटोकॉल और शान शौकत के साथ निकला। उन लोगों ने कहा जो कि दुनिया की जिंदगी को चाहते थे, हाय काश हमें भी वैसा ही दिया जाता जैसा कि कारून को दिया गया है, वो तो बड़ा नसीबे वाला है। और उन लोगों ने कहा जिनको इल्म दिया गया था तुम्हारा बुरा हो, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे उसके लिए अल्लाह के यहाँ जो सवाब है वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है, और ये सवाब तो सिर्फ सब्र करने वालों ही को मिलता है। लेकिन आपको पता है ऐसे अक्लमंद थोड़े होते हैं, आम तौर पे लोग ऐसे ही होते हैं जो दुनिया के शान और शौकत पे के पीछे मरते हैं। जैसे आजकल हमने स्टेटस को अपना खुदा बना रखा है। हर उस शख्स को हम काबिल इज्जत समझते हैं जो शख्स माल वाला है, जो कोठी और कार वाला है, खा वो माल उसने हराम कमाई से क्यों ना जमा किया हो, खा वो माल उसने डाका डाल के ही क्यों ना कमाया हो, लूट मार कर कमाया हो। तो उस वक्त जो लोग जिनको इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि जो शख्स ईमान लाए और नेक अमल करे उसके यहाँ जो सवाब है वो इस शान और शौकत से कहीं बेहतर है। लेकिन वो सवाब किसको मिलता है? जो सब्र करते हैं। तो हमने कारून को और उसके घर को जमीन में दंसा दिया। उसके लिए कोई ऐसी जमात ना थी जो उसकी मदद करती अल्लाह के सिवा, और वो खुद भी बदला ना ले सका। रिवायात में आता है कि कारून ने क्या किया कि एक औरत को पैसे देकर तैयार किया कि वो जब हजरत मूसा बात कर रहे हों उस वक्त उन पर बदकारी की तोहमत लगा दी, और उस औरत ने वैसे ही ऐसा ही कर दिया। अब हुआ क्या कि हजरत मूसा ने जब ये बात सुनी तो आपको पता है हजरत मूसा बड़े जलाल वाले नबी थे। उन्होंने उससे बड़े जलाल से पूछा क्या तू कसम खा कर कहे कि तू वाकई अपने इल्जाम में सच्ची है? अब हजरत मूसा ने इतने जलाल से बात कही कि वो औरत जो थी मान गई कि मुझे कारून ने इस तरह करके पैसे देकर इस बात के लिए तैयार किया था। अब हजरत मूसा ने फिर उसके लिए बद्दुआ की, और जब बद्दुआ की तो जमीन फटी लोगों के सामने। कारून उसके अंदर तंस किया, और उस वक्त भी कारून की सरकशी का अंदाजा इस बात से करें कि कहने लगा कि मूसा तू मेरा मालो दौलत लेना चाहता है, तू इसलिए तूने मेरे लिए बद्दुआ की है। अल्लाह ताला ने फिर क्या किया कि उसके मालो दौलत को भी उसके साथ ही जमीन में दंसा दिया, और वो लोगों के लिए इबरत बनकर रह गया। तो हमने उसको और उसके घर को और उसके मालो दौलत को जमीन में दंसा दिया। उसके लिए कोई ऐसी जमात न थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और वो खुद भी बदला न ले सका। और वो लोग जो कल उसके मर्तबे की तमन्ना करते थे वो कहने लगे हाय अफसोस, अल्लाह ताला ही जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ फराह करता है अपने बंदों में से, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह आज हम पर एहसान न करता तो हम भी कारून के साथ दंसा दिए जाते। ये वही लोग जो उसके शान और शौकत को देख के तमन्ना कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमें भी कारून जितना ही दे दे, उनकी आंखें खुल गईं। अगर अल्लाह ताला हम पर एहसान न करता तो आज हम भी उसके साथ दंसा दिए जाते। असल बात यही है कि काफिर कभी भी
फला नहीं पाते। असल बात यह है कि जो शख्स तकब्बुर और गरूर की रवश इख्तियार करे तो तकब्बुर और गरूर की रवश इंसान को बर्बाद करके रख देती है। अब ये तो दुनिया में रिसवाई थी और आखिरत की रिसवाई जो है वो अलहदा है। ये आखिरत का घर है, हमने उसको उन लोगों के लिए बनाया है जो कि जमीन में ना तो सरकशी चाहते हैं और ना फसाद चाहते हैं, और असल अंजाम तो परहेजगारों के लिए है। जो लोग दुनिया में सरकशी करते हैं, फसाद करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करके जमीन को गुनाहों से भर देते हैं, तो उनको आखिरत का घर नहीं मिलता। आखिरत का घर उन लोगों को मिलता है जो अल्लाह से डरते होते हैं। जो नेकी लेकर आएगा उसको उससे बेहतर बदला मिलेगा, और जो बुराई लेकर आएगा तो उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जो उन्होंने बुरे अमल किए थे, सिर्फ उतना ही जो वो अमल करेंगे। अल्लाह ताला ने नेकी का बदला 10 नेकियां रखा, मिनिमम कम से कम 10 नेकियां, और मैक्सिमम की कोई हद मुकर्रर ही नहीं की। जबकि बुराई का बदला, एक बुराई का बदला सिर्फ एक बुराई है, और यही अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत है। और खास तौर पर रमजान के महीने में रमजान का भी 70 गुना अजर शामिल कर लीजिए, तो फिर ये बदला कहां तक चला जाता है। इस महीने के एक लम्हे को भी जाया न कीजिए। ये महीना अल्लाह का मेहमान था, हमारे पास आया, पता भी नहीं चला। आज 18वां रोजा है, और आप देखेंगी अगले चंद दिनों में ये हमारे हाथ से निकल चुका होगा। इसके एक एक लम्हे की कदर कीजिए, और खास तौर पर आखिरी रात के हिस्से की, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं और खुद अल्लाह ताला पुकारते हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला ताकि मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला ताकि मैं उसको रिज़्क अता फरमाऊं। और ये महीना असल में इस्तिग़फ़ार का और तौबा का महीना है। अल्लाह ताला हमें इस महीने में इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक दे, अमले स्वाले करने की तौफीक दे, अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे, और ऐसे अमाल इख्तियार करने की तौफीक दे जो उसकी रजामंदी का सबब बन जाएं, जो हमें अल्लाह के रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ा दें। बेशक वो ज़ात जिसने तुझ पर ये कुरान फर्ज किया है वो तुझे बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला है, और कह दीजिए मेरा रब ज्यादा जानता है जो हदायत लेकर आया, और वो उस शख्स को भी जानता है जो वाज़े गुमराही में है। इस आयत में आपके लिए पेशीन गोई थी। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, लरादुका इला माद का मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको फिर मक्का ले जाएगा, और वाकई अगले कुछ अरसे में मक्का फतह हो गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां फातिह की हैसियत से दाखिल हुए, और आखिरत का अंजाम तो आपका है ही है। वहां पे अल्लाह ताला ने आपसे मकाम महमूद का वादा किया हुआ है। ये दुनिया में आपकी इज्जत अफजाई थी, और वो आखिरत में आपकी इज्जत अफजाई होगी। कह दीजिए मेरा रब ज्यादा जानता है जो हदायत लेकर आया, और उस शख्स को भी जानता है जो वाज़े गुमराही में है। आपको हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि आप पर कुरान नाजिल किया जाएगा, मगर ये तेरे रब की रहमत थी, तो आप हरगिज़ काफिरों के मददगार न बनिए। इससे मालूम होता है कि नबूवत वह भी चीज होती है। नबूवत इंसान को मेहनत करने से नहीं मालूम मिलती, और नबूवत अता होने से कुछ देर पहले खुद नबी को भी इल्म नहीं होता कि मुझे अल्लाह ताला नबूवत के लिए मेरा इंतखाब करने वाले हैं। और ऐसा न हो कि आपको की तरफ अल्लाह की आयत नाजिल होने के बाद काफिर आपको इस पर अमल करने से रोक दें। कुफार के एतराज और कुफार के दुश्मनियां आपके पाया इस्तकामत में लग़ज़श पैदा कर दें। ये सिर्फ ताकीद है और उम्मत को तालीम है, वरना आप जैसी साबित कदमी और किसको मिली थी, और कौन ऐसा साबित कदम था। और अपने रब की तरफ दावत दीजिए, और आप मुशरिकों में से ना हो जाइए। यहाँ भी खिताब आपको है, लेकिन इसका रुख जो है वो लोगों की तरफ है, और आप अल्लाह की तरफ दूसरे खुदा को भी मत पुकारिए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हर शय हिलाक हो जाएगी अल्लाह की जात के अलावा, और उसी के लिए हुक्म है, उसी का इख्तियार है, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला हमें हदायत की तौफीक अता फरमाए।
قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح